मेरा बंदा पे रूटीन च ऐसी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। एमपीएल पे काफी नाम बड़े टीवी में क्रिकेट देखने का मजा ही कुछ और है। डाउनलोड नाउ फ्रॉम mpl.live। हेलो गुड मॉर्निंग सर Audible to all of you? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चे Good morning, sir. गुड मॉर्निंग class anyone having the doubt related with the some previous lecture, that is the starting with the one the sequential circuit related like your flip flop, anyone having the doubt or at this time?
हमने लास्ट में फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट किए थे। हेलो, और हम रिगार्डिंग विद योर एसआर फ्लिप फ्लॉप, सबको क्लियर है बच्चे? हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल टू यू, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. फ्लिप फ्लॉप रिलेटेड हमने स्टार्ट किया था एसआर का ट्रुथ टेबल हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग विद योर दैट इज फ्लिप फ्लॉप दैट इज अ गेज विद द 4 कंडीशंस, s is equal to 0, r is equal to 0. In that case, that condition is now NC, that is a no change. When s is equal to 0, r is equal to 1, that condition should be known as your reset condition. According to, I have to draw with the previous with the NAND gate circuit diagram, that is a 1-bit memory cell. Okay, so now third condition is now s is equal to 1, r is equal to 0, that is your set condition. Now the fourth condition is now s is equal to 1 and r is equal to 1. So what is the condition, what is the command for related rate? What happens when s is equal to 1 and r equal to 1? So what is the condition for that? That is the first one, no change, reset, and the set condition. What happens when s is equal to 1 and r equal to 1? Invalid state. That is your invalid state or Invalid prohibited state, Yes, sir. or it known as your race condition. Okay, race condition means that is at the value of s is equal to 1, r equal to 1, that will be the output should have the same value, that is not a feasible one. So in that condition, that is the invalid state. That are the 4 cases discussed in your previously SR flip flop. All of you clear up to this point? Now I have started with the next flip flop. So basically ये मैंने दोबारा रिपीट 4 स्टेजेस इसलिए किए हैं कि that is the one the basics 4 conditions. इसी 4 कंडीशन में हमारे आगे सारा फ्लिप फ्लॉप चलेगा. That is related with your जितने भी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे कंडीशन इसके ऊपर ही फुलफिल होंगी. Clear everyone? I am audible to all of you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Please make audio should off. ये audio बंद कर लो, म्यूट कर लो बच्चे. Now concept is now next कुछ basic concept है that is related with the some flip flop, that is the concept of level triggering. लास्ट टाइम जब हमने फ्लिप फ्लॉप डिस्कशन किया था उसके सर्किट में हमने एक इनेबल की इनपुट दी थी. यू हैव टू सी विद द प्रीवियस वन, जो प्रीवियस हमने सर्किट डायग्राम की थी उसमें आप ये चीज चेक करोगे कि जो भी हमारा हमने सर्किट डिजाइन किया था उसके रिलेटेड the enable pin of the input of your flip flop. उसके अकॉर्डिंग enable पे हम हमारा जो flip flop on होगा that is depend upon the scenario of your clock cycle. Means आपकी clock जो input enable को दोगे उसके अकॉर्डिंग हमारा वो flip flop वर्किंग में होगा. उसके अकॉर्डिंग
there are some the concept of the happening of the level triggering. Level triggering means just like your clock pulse, means आपकी जो clock pulse होगी, that in the purpose of your scare wave type. Okay, Double help, Saji. Saji. Double Saji. कौन बनी रखा माई कांचे माचे बना दिले बिया घंटा सीजन नहीं से सब्जी मसाला कुछ नहीं कर दे छोड़ी मीठ लगता है मीठ that is I have to draw the diagram. That is the purpose of the level of the scare wave. Means that is a two level, 0 level and 1 level, 0 level and 1 level. If you have to concept of the level triggering, there is a two type of your level triggering happen in there. First one is now positive trigger, high level, sorry, high level triggering and the low level triggering, or it should be known as your positive level trigger. And the second one is now negative level trigger. There are two type of triggering in the case of your level triggered. That is your positive level trigger and the negative level trigger. Positive level trigger means when the value of the pulse is now high. I have the marking that situation when the your flip flop is working on the positive level trigger. Then SR latch is enabled when it is high. मीन्स जब आपकी ये स्केयर वेव हाई रहेगी एनेबल पॉइंट पे, तभी आपका फ्लिप फ्लॉप वर्किंग में आएगा. दैट शुड बी नोन एज योर पॉजिटिव लेवल ट्रिगर you are using. If you are using the negative level triggering, then your flip flop or latch should be working on this negative level. Clear my point? That is the concept of the level trigger. It will be consist of your two type of trigger, that is the positive level trigger and the negative level trigger, and it should be depend upon your flip flop which type of triggering you have to use, either positive level either negative level. अगर आप positive level trigger use कर रहे हो तो जो लेवल का हाई होगा उस केस में आपका फ्लिप फ्लॉप वर्किंग होगा और जीरो स्टेट पे वो एक्टिव नहीं होगा. दैट शुड बी इन योर इनएक्टिव फेज. बट whenever you are using your negative level trigger, in that case your negative पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी उस केस पे आपका फ्लिप फ्लॉप हाई होगा, वर्किंग होगा, पॉजिटिव पे नहीं होगा. क्लियर द कंसेप्ट ऑफ योर लेवल ट्रिगर? Yes, sir. ओके. Now next one is now ये सर बड़का बन ना रे होय gated D latch. gated D latch or flip flop. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था SR flip flop, that should be no set or reset flip flop. Second one we are discussing, that is your D flip flop. D flip flop में क्या है basically? हेलो हेलो.
So that is the diagram of your D gated flip flop. Okay, I have to draw the truth table for that also. Now, I have to draw the flip flop. That should be the D flip flop. It should be used for the overcome the situation of the drawback the situation of your SR flip flop. Okay, I am audible to all of you. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so अब हम D flip flop पढ़ रहे हैं. D flip flop is now basically drawback of the removal the drawback of your SR flip flop. SR flip flop में हमारा drawback क्या था, जहाँ पे हम 4 कंडीशन स्टडी कर रहे थे, उस 4 कंडीशन पे हमारी जब 4th कंडीशन डिस्कस कर रहे थे, when S is equal to 1, R is equal to 1, it should be used for the race condition. This condition is over limited or it should be remove the drawback by using D flip flop. How this one? ये सेम ही SR flip flop है. Okay, so now you have to using the D input with the inverted input go to the R. मीन्स दोनों इनपुट को हमने कंबाइन कर दिया, एक ही इनपुट दूसरे को इनवर्स जाएगी. तो यहाँ पे मेरी अब सिंगल इनपुट रह गई है D. D आइदर 0 और आइदर 1 वैल्यू होगी. क्लियर? यू हैव गो थ्रू द ट्रूथ टेबल. हमारे पास इनपुट है, इनपुट इज नाउ इनेबल एंड डी. दो ही इनपुट है हमारे पास, इनेबल और डी. इनेबल आइदर 0 होगी और आइदर 1 होगी. डी आइदर 0 और 1 होगी. नाउ अंडरस्टैंड द ट्रूथ टेबल. मींस जब आपकी इनेबल की वैल्यू 0 होगी तो डी की वैल्यू कुछ भी हो तो आपका जो Qn+1 Qn+1 उसकी जो कंडीशन आएगी वो डेटा आपका पिछले वाला ही रहेगा. अगर आपका फ्लिप फ्लॉप नहीं चल रहा है तो जो आपका पिछला डेटा होगा, प्रीवियस डेटा होगा, वही डेटा आप यहाँ पे एड अप करोगे. मींस Yes, जब इनेबल 0 थी, डी की वैल्यू चाहे 0 हो 1 हो, आई हैव मेंशन द डोंट केयर टर्म, तो डेटा आपका क्या होगा? प्रीवियस वन. Qn and Qn plus bar. That comment is now NC, that is a no change. Okay. Now second case, when enable is now high, enable की वैल्यू हाई हो गई है, enable high, D is now 0. D is 0 means S is equal to 0 and R equal to 1. S is equal to 0, R equal to 1. So when S is equal to 0, R equal to 1, so what is the condition of the output? Your output is now 0, 1. There should be no reset condition in the case of your SR flip flop. Yes, sir. Similarly, when value of D is now 1, D is 1 mean S is equal to 1 and R is equal to Set condition. 0. So that is a condition of the set condition. mean उस केस में आपकी Q की वैल्यू 1 होती है, Q बार की वैल्यू क्या होती है? 0. It should be now set condition. So that should be, इस कंडीशन में क्या हुआ? D फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग आपका केवल एक ही कंडीशन रिमूव हो गई कि आपके पास दो ही इनपुट रहेंगी, 0 और 1. दोनों कंडीशन सेम होने से रही क्योंकि वी आर यूजिंग द इन्वर्ट गेट हियर. यहाँ पे इन्वर्ट गेट जो हमने यूज किया है वो हमने एंड गेट ही करना है, नैंड गेट सॉरी, बिकॉज द 1 bit memory cell flip flop always doing the working of your either NAND gate or NOR gate. So that is the understand of your D flip flop or D latch. Anyone having the doubt up to this end relating the table for the D flip flop? No, sir. No, sir. So बच्चे, that is the basics one.
इसके आगे जब हमने रजिस्टर और काउंटर करने हैं तो हमने डायरेक्ट ही कन्वर्जन डायरेक्ट फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं। ये कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए ट्रुथ टेबल पे। बस ये सारी ट्रुथ टेबल की जो कंडीशन है इट शुड बी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। अगर हमें एसआर फ्लिप फ्लॉप समझ आ गया आपके ढंग से तो आगे फ्लिप फ्लॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Check out this one in my board. I will give you 1 or 2 minutes. Anyone having the doubt up to your D flip flop? चले आगे बच्चे। Move forward Yes. regarding the next flip flop. Hello everyone. Yes, sir. चले बच्चे चलो। Yes, sir. I have arranged this one. Next one is now difference between latch and flip flop. Next topic is now difference between latch and flip flop. अब इसमें जो थोड़ा डिफरेंस हम समझ लें, इसमें डिफरेंस होता क्या है बेसिकली। So that is the first difference between latches and flip flop is now latches and flip flop both are basically the bistable element. That is the first one कि दोनों ही bistable element है. You have to storing the 1-bit memory cell. Okay. Second one is now latch has an enable input, means latch has got an enable input. As long as it is active, latch output will keep changing according to change in its input. In other word, latch is a level trigger, means जो आपका latch होता है basically it should be working on the clock pulse. Whatever your type of clock pulse should be working depend upon your level triggering. Level triggering means जो हमने previously discuss किया है कि positive level और negative level, means जो लैच आपका उस तरह काम करेगा जब आपका पल्स की ट्रिगरिंग जो होगी वो लेवल बेस्ड ट्रिगरिंग होगी, आइदर हाई लेवल और आइदर लो लेवल. ओके, सो इन द केस ऑफ योर flip flop basically are said to be edge sensitive or edge trigger rather than the level triggering like latches. So means it is working as the flip flop उस सिनेरियो में किस तरह काम करेंगे, means it should be working your higher edge and the lower edge. This is your positive edge trigger and the negative edge trigger, means इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रिगरिंग की कुछ और कैटेगरी आई जो हमने सबसे पहले ट्रिगर का डिस्कस किया था. दैट शुड बी नोन एज योर level triggered. According to introduce your edge flip flop, the next topic is now edge trigger is now introduced. That means
whatever the two type of your edge triggering, that is a positive level, positive triggering or negative triggering. Positive trigger means that is a when your wave is now upper side, when it's falling edge, that is known as your negative triggering. Means it should be working as a flip flop when your wave is working as a positive edge triggering and it is working on the negative edge triggering. मीन लैच डिपेंड करता है एक तरह का जब उसका एक लेवल सेट हो, और फ्लिप फ्लॉप उस तरह काम करेगा जब उस वेव की हम पॉजिटिव राइजिंग और फॉलिंग एज डिस्कस करेंगे. मींस पॉजिटिव एज ट्रिगर और द नेगेटिव एज ट्रिगर. So that should be the under the category of discussion of your edge trigger. Edge trigger means positive edge trigger and the negative edge trigger. All of you are clear this point? अब इसके अकॉर्डिंग अगर मेरे पास कोई भी क्लॉक है, अगर मेरे पास पॉजिटिव क्लॉक आ रही है, तो हाउ इट शुड बी कन्वर्टिंग इनटू योर एज ट्रिगर. मींस मेरे को अब ये जो पॉजिटिव ट्रिगर आ रही है, इसके अकॉर्डिंग मेरे को मेरी शार्प स्पाइक्स कैसे मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस वन. मींस अकॉर्डिंग टू दिस स्पाइक्स मींस जो मेरा फ्लिप फ्लॉप होगा वो इस तरह से स्पाइक्स के ऊपर काम करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एज ट्रिगर, पॉजिटिव और फॉलिंग एज. ये मेरा लेवल ट्रिगर हो गया जब वो लैच की तरह काम करेगा. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अप टू दिस पॉइंट? Anyone having the doubt up to this point? That is the level triggered, difference between level triggered and the edge triggered. I am audible to all of you students. Hello. Yes, sir. Yes. सर एक बार रिपीट कर दो सर थोड़ा. हेलो बच्चे, आपके आवाज नहीं आ रही, बताओ. सर एक बार रिपीट कर दो सर. कहाँ पे बच्चे? सर लैच और सर लैच ट्रिगर लैच और फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली बच्चे डिफरेंस इतना खास नहीं है, दोनों ही बाइस्टेबल एलिमेंट है, दोनों ही बहुत ही एक तरह के कैटेगरी में यूज होते हैं. बट मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगराइज किया उनको डिपेंड अपॉन द ट्रिगरिंग लेवल. जो हमारा लैच होता है इट शुड बी वर्किंग ऑन योर लेवल ट्रिगरिंग एंड योर फ्लिप फ्लॉप इज वर्किंग ऑन योर एज ट्रिगर. लेवल ट्रिगर मैंने पिछली कंसेप्ट में आपको क्लियर किया है कि आपका लेवल ट्रिगर क्या होता है. दैट इज अ पॉजिटिव लेवल ट्रिगर और द नेगेटिव लेवल ट्रिगर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर फ्लिप फ्लॉप डेफिनेशन, फ्लिप फ्लॉप वर्किंग कहां पे करता है? उस क्लॉक साइकिल पे जहां पे वो फॉलिंग और राइजिंग एज पे आपका काम करे. मींस आपका जो स्क्वायर वेव है वो एक राइजिंग एज पे स्पाइक पे काम करेगा और फॉलिंग एज पे स्पाइक पे काम करेगा. आइदर राइजिंग एज, आइदर योर फॉलिंग एज, आइदर योर पॉजिटिव एज ट्रिगर, आइदर इट शुड बी नोन एज योर नेगेटिव. ये मेरा हो गया पॉजिटिव, ये मेरा हो गया नेगेटिव. मीन सिमिलरली लेवल जब 1-0 पे काम कर रहा है तो फ्लिप फ्लॉप भी आपका राइजिंग और फॉलिंग एज पे ही काम करता है. इस पूरे इंटरवल में वो काम नहीं करेगा. जब राइजिंग आएगा तभी वो चलेगा, जब राइजिंग आएगा तभी वो चलेगा. यू आर चूजिंग एनी वन ऑफ द ट्रिगरिंग एट दैट पॉइंट. यस सर क्लियर. Clear up to this point? So now यस सर. how you should have to convert, हमारा इनपुट सिग्नल तो यही क्लॉक सिग्नल होता है. How you should have to convert this input signal according to this input signal means क्लॉक वेव से हम स्पाइक्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे? That should be used with the help of your passive differentiator circuit. वो एक तरह का इनपुट सर्किट होता है. Class, listen carefully what I am saying in your lecture. बड़ी बारीक सी बातें मैं बीच में बोल जाता हूँ. You have to listen carefully my each and every point. It will be valuable for the next topic and the individual topic. वो skip हो जाएगा तो समझना मुश्किल हो जाएगा. This is your differentiator circuit. You have to provide input your clock wave and you have to get the spikes at the output. ये सर्किट होता है आपका. अगर आप इनपुट पे ये सर्किट लगा दोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसिव डिफरेंशिएटर अगर आप लगा देते हो तो ये क्लॉक वेव आपको एक स्पाइस की तरह मिल जाएंगी आपको. मींस अगर आपने उस फ्लिप फ्लॉप को फ्लिप फ्लॉप की तरह यूज कर रहे हो तो यू हैव टू गिव योर इनपुट सर्किट लाइक दिस. आप अपने फ्लिप फ्लॉप में ये सर्किट लगाओ, उसके अकॉर्डिंग आपका जो इनेबल, दैट इज द केस आई एम डिस्कसिंग योर इनेबल पॉइंट. इनेबल इज नाउ वर्किंग फॉर द फ्लिप फ्लॉप. उस केस में इनपुट सर्किट को
देके तो आपको इनपुट में स्पाइक्स मिल जाएंगे. So that is the conversion of your basically your positive level trigger to your edge trigger with the help of your passive differentiator. All of them clear up to this point? Yes sir. मीन्स आगे अब आप किसी पे भी काम कर सकते हो. मीन्स आइदर राइजिंग एज और आइदर फॉलिंग एज. तो आपको पेपर में कोई भी आ जाए कि अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव पे काम कर रही है तो आप राइजिंग एज एनेबल लो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी आउटपुट. मींस जो चारों केसेस है एसआर फ्लिप फ्लॉप में, डी फ्लिप फ्लॉप में 2 केसेस हैं, वो इनेबल के ऊपर आपके डिपेंड करेंगे. अगर पॉजिटिव ट्रिगर आ रहा है तो उस पॉजिटिव ट्रिगर में वो वैल्यू चेंजेस होगी. नो चेंज, सेट, रीसेट और इनवैलिड स्टेट. फॉलिंग एज पे जाके चेंज होगी आपकी कोई भी कंडीशंस होगी. अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो वो आपकी वैल्यू प्रीवियस वाली ही रहेगी. Clear up to this point? Next one is now JK flip flop. I have to draw the diagram of your JK flip flop. Input is J and K. One feedback is connected also with that. That is the complete circuit of your JK flip flop. सर नाइन गेट ਦੀਆਂ 3 ਇਨਪੁਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ. जितनी मर्जी लगा दो बच्चे, आगे कर तो रहे हैं जितना भी सर्किट डिजाइन करते हैं हम. यस सर. इसका ट्रूथ टेबल बना देता हूँ आपको. फ्लिप फ्लॉप पहले कभी पढ़े थे? बी आपने बी ट्रिपल में पढ़े हुए हैं बच्चे? यस सर. ये ऐसे Yes, sir. डिस्कशन ब्रीफ में हुई हुई कि नॉर्मली हुई हुई है? सर नॉर्मली हुई थी. सर वो लॉकडाउन आ गया था ना, अच्छे से क्लासेस नहीं लग पाई थी तब. ओके ओके. अब देखो बच्चे, सर्किट एक बार देख लो. Circuit of the JK flip flop is similar with the SR flip flop. Okay. Now changing is that the output is also make the feedback of the other NAND gate input. Means हमने एक की आउटपुट दूसरे के साथ इनपुट के फीडबैक की तरह काम किया हुआ है. That is the working of your JK flip flop. अगर मैं सिंप्लीफाई ब्लॉक बनाता हूं तो JK को हम ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं. JK that is a E
आउटपुट इज Q and Q bar. क्लियर? क्योंकि नेक्स्ट हर बार हमने जब फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तो इतनी बड़ी डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, वी हैव टू डिस्क्राइब विद सम टाइप. ओके, अब इसमें डिफरेंस क्या है देखो, यहाँ पे सेम वही कंडीशन आ गई है. हम ट्रूथ टेबल से बच्चे एक लिसन केयरफुल लिसन, जितने भी हम ये टॉपिक कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, मेरी वर्किंग के अकॉर्डिंग, इसके केसेस, इसकी डायग्राम और इसका ट्रूथ टेबल ही बेसिकली इसकी वर्किंग है. ओके, फॉर ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप. जो मैंने केस स्टार्टिंग में डिस्कस कराए थे वो सभी फ्लिप फ्लॉप के आपको केस डिस्कस करने पड़ेंगे. क्लियर एवरीवन? क्यों? उसके अकॉर्डिंग मेरी जितनी भी कंडीशन है जहां से मैं अपना ट्रूथ टेबल बना रहा हूं, दैट इज द ट्रूथ टेबल फॉर योर जेके फ्लिप फ्लॉप. क्लियरली अंडरस्टैंड टू मी व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. सो अब सबसे पहले मान लो मेरा इनेबल की वैल्यू 0, जे और के की वैल्यू कुछ भी हो, अगर इनेबल ही 0 है तो आपका फ्लिप फ्लॉप वर्किंग में नहीं होगा, जो हमने प्रीवियस पढ़ लिया हुआ है. उसके अकॉर्डिंग मेरी जो नेक्स्ट वाली आउटपुट है वो क्या आएगी? प्रीवियस वाली आउटपुट. प्रीवियस आउटपुट क्या है? क्यू एन बार, दैट शुड बी नोन एज योर नो चेंज कमेंट कंडीशन. Okay, clear everyone up to this point? The board is visible to end of my what I am right at the truth table. Yes, sir. Okay, so now next condition is now happen. Enable is now 1. Enable 0 पे तो flip flop चलना नहीं था, 1 पे flip flop working होना है आपका. तो next condition is now happen. Enable is now 1. Enable 1 में क्या है? J और K 0 0. अब मैं थोड़ा सा ना इस केस में आपको ना दो कंडीशन अंडरस्टैंड करवा देता हूं. डी फ्लिप फ्लॉप तो बेसिकली था जो हमने कंडीशंस को ओवरकम किया था एसआर फ्लिप फ्लॉप को बाय यूजिंग द एलिमिनेट द कंडीशन ऑफ द केस 4. मीन उस डी फ्लिप फ्लॉप में आपकी एस इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1 की कंडीशन ही नहीं आई. यही हुआ था डी फ्लिप फ्लॉप में. तो Yes, वो sir. एक तरीके से वो एलिमिनेट हो गई एज कॉरस्पॉन्डिंग टू योर एसआर फ्लिप फ्लॉप. बट इन जेके फ्लिप फ्लॉप सेम कंडीशन विल बी हैपन. केसेस 4 ही आ रहे हैं, बट उस कंडीशन में एसआर फ्लिप फ्लॉप को रिमूव करने के लिए बाय डिफरेंट मेथड यूज किया गया है. उसको हम मेथड अब समझ लेते हैं कैसे होगा. मींस अगर मैं जे और के की वैल्यू 0 0 करता हूं, सो उसके अकॉर्डिंग जो मेरी वैल्यू आएगी दैट इज आल्सो नो चेंज. ये पहली तीनों वैल्यू जे और के में सेम रहेंगी. नो चेंज, रीसेंट एंड सेट, दैट इज द सेम वैल्यू, सेम केस डिस्कशन व्हाट आई एम डिस्कशन इन योर एसआर फ्लिप फ्लॉप. मैं आपसे फोर्थ केस डिस्कस करता हूं व्हेन j is equal to 1 and k is equal to 1. उसके अकॉर्डिंग आपके पहले तीनों केस अपने आप डिस्कशन कर लोगे कि मेरी आउटपुट कैसे हैपन हुई. क्लियर माय पॉइंट? I have the discussion on the fourth case, j equal to 1, k equal to 1. Please listen carefully. Enable is now 1. मान लो enable की 1 है, j और k की वैल्यू 1 आ रही है. ये j है, ये बेसिकली k है. So I have to assume that q and q bar here. q is equal to 0 and q bar की वैल्यू क्या मान ली हमने? 1 है previously. Clear? Now checking out the circuit 1. Means एक आउटपुट q bar की अगर वैल्यू मेरी 1 आ रही है तो 1 वैल्यू मेरी j पे चली गई है, तो तीनों ही 1 हो गई है, तो आउटपुट क्या आएगी मेरी? इस j is equal to 1, e is equal to 1 and q bar से भी वैल्यू 1 चलेगी. आउटपुट इज नाउ 1 0. आउटपुट इज नाउ 0 ऑफ द NAND गेट. सिमिलरली Yes, अब sir. यहाँ पे देखो q की वैल्यू 0 है, तो 0 अगर मेरी NAND गेट पे चली गई है तो मेरी आउटपुट 1 आएगी यहाँ पे. Yes, sir. So that I am the case discussion 4 when j is equal to 1, k is equal to 1. अगर मान लो 0 वैल्यू एक इनपुट आ गई है तो NAND गेट की आउटपुट क्या आएगी? What happen when the NAND gate is output? Sir, 1 1 1. 1 means q की वैल्यू 1 आ गई. अगर 1 वैल्यू इसकी है तो 1 इसकी आई है, तो 1 और 1 मिलके दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी NAND गेट की? 0 0. तो प्रीवियसली वैल्यू क्या थी मेरी q की? 0. उसके बाद वैल्यू क्या आई? 1. 1. q बार की वैल्यू थी 1, फिर वैल्यू क्या आई? 0. So what happened when j is equal to 1, k is equal to 1, enable is now high, then in case you toggle the data at the output. डेटा टॉगल हो गया आपका? all of you understand my point? Yes, sir. क्लियर हुआ ये केस? हेलो एवरीवन,
My voice is audible to all of you. क्लियर सर। Yes, sir. पता चला ये टॉगलिंग कैसी हुई? Yes, sir. मींस जैसे ही J और K की वैल्यू 1 आई, मेरा प्रीवियस डेटा था 0 1, उसके बाद मेरी वैल्यू 1 0 हो गई, तो ये डेटा क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया, टॉगल हो गया। सो मींस व्हेन J इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 1, जो आउटपुट आएगी उसका आउटपुट का रिवर्स होता रहेगा, मींस टॉगल होता रहेगी वैल्यू शुड बी टॉगल आउट। सो दैट शुड बी नाउ द कंडीशन हैविंग द रिमूविंग ऑफ द रेस कंडीशन। इस कंडीशन ने आके जेके फ्लिप फ्लॉप ने रेस कंडीशन को ओवरकम कर दिया। All of you understand Yes, my sir. point? Yes, sir. So that is the basic phenomena of your JK flip flop. देख लो JK flip flop में यहां तक डाउट किसी को? जैसे मैंने फोर्थ केस डिस्कस किया है, ऐसे ही आपने सारे केस इसके डिस्कस करने हैं। वो केस मैंने इसलिए डिस्कशन नहीं किए, वो हमने एसआर में कर लिए हुए हैं, तो वही सेम आउटपुट भी इसमें वही आएगी। सर बेसिकली इसमें जो थर्ड इनपुट आई है उसी का हाँ, इफेक्ट पड़ा ना? उसी का इफेक्ट पड़ा। दैट इज वही है थर्ड आउटपुट इसमें, वरना तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है पूरा सर्किट। यस सर। थर्ड इनपुट हमने इंक्लूड की है, आउटपुट मेक एज ए फीडबैक। यस सर। क्लियर सर। बाकी बच्चे सब क्लियर है सबको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताओ बच्चे। सर इसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे? योर नेम प्लीज बच्चे, कौन बोल रहे हो आप? सर तमन्ना। तमन्ना, हाँ जी बताओ बच्चे। सर इसके जैसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे बच्चे जैसे ये कुछ भी कंसेप्ट है ना जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, दैट आर द ऑल द लॉजिक, दिस इज द थ्योरी। थ्योरी मींस अगर मान लो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ योर एसआर फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगर, तो क्या करोगे? सर्किट डायग्राम बनाओगे, उसके 4 Yes. केस डिस्कस करोगे और उसका 4 केसों में डिस्कस करके क्या बनाओगे? ट्रुथ टेबल। दैट इज द सफिशिएंट थिंग फॉर दैट। ओके सर। इसमें कोई हमने किसी चीज की डेफिनेशन नहीं लिखनी है कि डेफिनेशन कोई लिखनी है, उसको वर्किंग चाहिए था, उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना है हमने बस। क्लियर माय पॉइंट? ओके सर। उसने बोल दिया एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ योर जेके फ्लिप फ्लॉप, तो जेके का सर्किट डायग्राम बनाओ। ये जो मैंने ट्रुथ टेबल बनाया है, ये इसको डिस्कशन करो कि ये मेरा ट्रुथ टेबल बना कैसे है, कैसे मेरे जे और के की वैल्यू 0 से मेरी जो स्टेट आ गई है वो नो चेंज कैसे हो गई है। ये केस 1 बना के इसको डिस्कशन करो कि मान लो मैंने वहां पे 4 गेट बनाए हैं, 1 2 3 4 नैंड गेट, कि अगर मैं एस की जे और के की वैल्यू 0 आएगी तो मेरे नैंड गेट 3 की आउटपुट ये रहेगी, 4 की ये रहेगी, उसके अकॉर्डिंग मेरी 1 और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी होगी उसमें Q एंड Q बार की वैल्यू ये आई, मींस इट शुड बी वैल्यूड एट द नो चेंज, दैट इज द केस 1। यही हमने पढ़ा जो मैंने अभी फोर्थ के डिस्कस किया, जे का ऐसे ही एक्सप्लेन किया आपको। यस सर। ठीक है, सो दैट इज द लॉजिकल वन, इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है आपको। और किसी को डाउट यहां तक जेके फ्लिप फ्लॉप तक? बच्चे क्लियर करते रहो, हमने रुकना नहीं है, हमने आगे चलते जाना फ्लिप फ्लॉप पे। जहां पे किसी को डाउट है, ओनली रिस्पॉन्डिंग फ्यू स्टूडेंट्स इन माय वॉइस, जिनको नहीं समझ लग रही प्लीज रिस्पॉन्ड इन योर लेक्चर। कुछ एक दो पोल देखो बच्चे, ये करो पहला पोल, फर्स्ट पोल आई गिव टू यू ऑल ऑफ यू।
3 students are pending right now. बच्चे do quickly. That is a theory 1 question. Okay, the correct answer is now the truth table for an SR flip flop has how many valid entries? That is the 3. तो उसका जो yes sir. फोर्थ है that is your invalid state. Valid entry कितनी है? 3 ही है, बाकी फोर्थ वन तो invalid है ना बच्चे? Yes sir. Okay. Now go ahead. ये बच्चे पीपीटी में ना बाकी सभी टेबल वगैरह वैसे ही बने हुए हैं, बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बोर्ड में बता रहा हूँ. क्लियर? वहां Yes, से sir. समझ लगेगी. सेम थिंग मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ आपको. नाउ गो फॉरवर्ड, नेक्स्ट करते हैं. Sir, excuse me. बताओ बच्चे. सर JNK में वैलिड कितनी होंगी? 3 ही होंगी कि 4 होंगी, चारों वैलिड होंगी. उसमें देखो ना एसआर की लिमिटेशन रिमूव हो गई है, टोगल आ Yes, गया sir. वहां पे, Yes sir. तो उसमें वैलिड कंडीशन 4 ही होंगे. Clear sir. अब मैं जेके का ना एक टाइमिंग डायग्राम बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखना. वेव फॉर्म ऑफ योर जेके फ्लिप फ्लॉप. नो डिस्कशन बच्चे, म्यूट योर वॉइस.
Now, hello everyone. बच्चे, voice is audible to me. I am audible to all of you. Hello. Yes, sir. I have drawn Yes, the sir. waveform of your JK flip flop. Okay. So I have the discussion same 4 cases in your JK flip flop according to your waveform. ये वेवफॉर्म मैंने एक आपको JK फ्लिप फ्लॉप की बना दी है, SR की भी ऐसे ही बनती है. So now I have discussion with that. Enable, उसमें हमारी इनपुट कितनी थी? 2 enable. Enable is now 0. Enable J, K and Q. Q bar is basically the inverse of your Q. Okay. So now I have the discussion of this point. When enable is, this is the enable signal. Okay. This is a JK. I have the mention 4 time interval, that is a T0 to T1, T1 to T2, T2 to T3 and T3 to T4. So I have discussion this on this point. I have the dashes of also mentioned vertically in this waveform. Please check out this one. When enable is now 0, when enable is 0, what are the value of J and K? The Q should be now, Q should be having the previous value. Q having the previous value 0, तो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी. देखो यहां तक Yes, sir. वैल्यू 0 ही आ रही है. देखो यहां तक अगर enable 0 है तो Q की वैल्यू भी वही enable 0 रह रही है. It does not Yes, matter sir. कि J और K की वैल्यू क्या है. Now what Yes, happen? See the next condition. When enable is 0, enable is high. मींस जब आपकी इनेबल हाई होगी, देखो आपकी इनेबल कहां पे आई हो रही है, यहां पे जाके ये वैल्यू 1 आ रही है इनेबल की. T1 के बाद इनेबल आई हो रही है और J की वैल्यू यहां पे क्या है? 1. K की वैल्यू क्या है यहां पे? 0. 0. So what happen when enable is high, J is equal to 1, K is equal to 0? What is the condition for that particular time interval? Set. आपकी आउटपुट क्या आ रही है? Q की वैल्यू क्या है? हाई. दैट मीन इट High. इज नाउ सेट कंडीशन. Yes, sir. बच्चे ये Sir, देखो वेवफॉर्म समझ लगी जो मैंने बताया? Sir, excuse me. हाँ जी बताओ. सर जो आपने इनेबल की बनाई है हाई, सर वो हाँ. पहले नहीं आएगी सर, क्योंकि वो जे पहले हाई हो ही नहीं सकता. वो पहले छोड़ो, वो मैंने जैसे बनाई है, हम इस वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग केस को डिस्कस कर रहे हैं. यस मैंने सर. ये कहा है कि अगर मान लो इनेबल मेरी यहाँ पे 1 आ गई है, उस केस में J की वैल्यू मेरी 1 आ गई है यहाँ पे, यस और सर. K की वैल्यू मैंने 0 बनाई हुई है. When J is equal to 1, K is equal to 0, enable is now 1. So what happen? जो आउटपुट शुड हाई, Q की वैल्यू हाई होती है, तो Q Yes, की sir. वैल्यू हाई होगी तो वो कंडीशन क्या थी? इस कंडीशन पे आपकी सेट कंडीशन चल रही है. यस सर. नाउ गो टू द सेकंड वन. मान लो इनेबल फिर हाई है, इनेबल हाई पे ही चलना सारा फ्लिप फ्लॉप, लो पे तो चलना ही नहीं है. ओके. इनेबल इज हाई, J की वैल्यू 1 है तो बन नहीं रही है. K की वैल्यू क्या हो गई है? K की वैल्यू भी 1 हो गई है. यस सर. उस केस में J की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू 1 है. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द Q? Q की वैल्यू क्या होनी है आपकी? 0. Q की वैल्यू होगी टॉगल. टॉगल मींस 0 1 0 1 0 1, वो चेंज होती रहेगी जब तक आपकी वैल्यू J की वैल्यू 1 रहेगी और Q की वैल्यू 1 रहेगी. यस सर. ऐसा ही होगा बच्चे. मीन जब Yes, sir. तक J की वैल्यू 1 रहेगी, K की वैल्यू 1 रहेगी, K की वैल्यू अभी भी 1 है, J की यहां पर 0 हो गई है. मीन इस कंडीशन पे आके आपकी यहां तक वैल्यू Q की वैल्यू टॉगल होती रहेगी. टॉगल, कोई एक स्टील वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है? J और K की वैल्यू 1 हो जाएगी जब तब हमारी कंडीशन टॉगल होती रहेगी. उस केस में Q की वैल्यू टॉगल मीन अप एंड लो होती रहेगी. टॉगल ही कंडीशन आती रहेगी. ये वाली बताओ बच्चे, ये कंडीशन क्लियर हुई है सबको? हेलो Yes, sir. एवरीवन. Yes, sir. All of you have the clear this condition of the JK flip flop. When J is Yes, equal to sir. 1, K is equal to 1, Yes, sir. enable is now high. जब तक J की वैल्यू 1 रहेगी तब तक मेरी वैल्यू हाई रहेगी. जब तक K की फिर भी 1 है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि J की वैल्यू 0 हो गई है. So that condition is known as your race around condition. इस कंडीशन Yes, को हम sir. क्या बोलते हैं? रेस अराउंड कंडीशन. क्लियर एवरीवन? अब देखो आगे,
J की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई है, K की वैल्यू 1 है, तो उस केस में मेरी Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. दैट इज अ कंडीशन ऑफ योर रीसेट कंडीशन. Reset condition. Yes, sir. Clear everyone? Basically this waveform I have to understand what is the race around condition in your JK flip-flop waveform. So means in your JK flip-flop having the limitation of your race around condition, उसने इनवैलिड स्टेट को तो रिमूव कर दिया है, बट इसमें एक कंडीशन हैपन हो गई है, इट शुड बी नोन एज योर रेस अराउंड कंडीशन. All of them clear up to this point? Please, having the doubt up to this waveform, then clear to with me. Clear है Yes, बच्चे sir. यहाँ तक? Clear, sir. Clear, sir. Yes, sir. चलो आगे चलते हैं. तो इस हेलो एवरीवन. Yes, sir. Now this race around condition, should be removed by using two flip flop. Means अब ये रेस अराउंड कंडीशन हम रिमूव कैसे करवानी होगी, दैट इज डिपेंड अपॉन योर टू कंडीशन. मींस हाउ टू रिमूव अवॉइड योर रेस अराउंड कंडीशन. उसका सबसे पहला पॉइंट है कि रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए फर्स्ट वन इज नाउ यूजिंग एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. Second one is now master slave JK flip flop. So now anyone having the query, anyone having the clearance of the avoidance of your race around condition by the using of these two methods, that is your edge triggered flip flop or master slave JK flip flop. चलो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप अभी हमने पढ़ना है. हाउ टू रिमूव द रेस आउट कंडीशन यूजिंग एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. बताओ, एनीवन हैविंग द टेक्निकल डिस्कशन विद देम कि हम एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप से रेस अराउंड कंडीशन कैसे मूव कर सकते हैं, ये बताओ. एनीवन हैविंग द रीजन? बताओ बच्चे. सर जैसे हम उसको पैसिव डिफरेंशिएटर सर्किट से सर चेंज कर देते थे. देखो अब इसको हम नेगेटिव एज ट्रिगर से कैसे रिमूव करते हैं. मेरी रेस अराउंड कंडीशन आने का कारण क्या है, पहले ये बताओ. सर J and K is equals to 1. J and K इक्वल टू 1 की मींस वो तब तक 1 रहे जब तक आपकी इनेबल की पल्स क्या हो रही है. ये जो इनेबल यूज कर रहे हो दैट इज व्हिच टाइप ऑफ ट्रिगर, लेवल ट्रिगर और एज ट्रिगर? Level trigger. Level trigger. Okay, I have to read some lines according to understand this one. For race around condition to take place, it is essential to have enable input high along with J and K. Okay, as enable input remain high or for a long time for a JK latch, the problem of multiple toggling arises. यही हमने वेवफॉर्म में देखा कि जब तक मेरी enable की इनपुट हाई रहती है, JK की वैल्यू 1 रहती है, तो प्रॉब्लम ऑफ योर मल्टीपल टॉगलिंग टेक प्लेस. यही हमने देखा था रेस अराउंड कंडीशन में. So then, but if you are using the edge triggered JK flip flop, the positive clock pulse is present only for a few short time. Means if you are using a edge trigger में क्या करोगे आप? You are using a spikes according to this one. Yes, Not sir. a permanent duration. यहाँ पे कुछ टाइम लगता है, यहाँ पे स्पाइक्स पे कुछ टाइम लगेगा. No, sir. तो इसी के कारण by using edge trigger flip flop, that race around condition should be avoidance. Means ये तब तक उस कंडीशन पे फुलफिल रह रहा है जब उतने मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड तक वो हमारी वेव चल रही है.
अगर मैं शार्प वेव्स ले रहा हूं, ट्रिगर ले रहा हूं, तो वो तो ट्रिगर फॉर ए स्पाइक्स यूज हो रही है। स्पाइक आई तो टॉगल हुआ, स्पाइक नहीं आई तो टॉगल नहीं होगा। क्लियर है दिस वन? स्पाइक्स चलेगी तो उसके कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के लिए वो टॉगल नहीं होता रहेगा। एक भी टॉगल हुआ, स्पाइक आई, खत्म हो गया। क्लियर दिस पॉइंट? So that सर is the बट रेस avoidance अराउंड of your JK flip flop with your race around condition by using first method, that is your using edge triggered flip flop. Clear up to this point? यस सर Now I have Yes, to do sir. the next flip flop, that is the T flip flop or known as your toggle flip flop. अब ये कंडीशन देखो, टी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप की दोनों की आउटपुट को कंबाइन कर दिया है बाय यूजिंग ऑफ योर टी ओनली। मीन टी की आइदर वैल्यू 0 होगी और आइदर वैल्यू 1 होगी। अगर टी की वैल्यू 0 है तो मींस जे और के की वैल्यू क्या है मेरी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे एंड के इफ माय टी वैल्यू इज नाउ 0? हेलो, what happen when j and k is 0 and t is 0? t सर 0 होगा तो jk की वैल्यू भी 0 होगी। j और k की वैल्यू अगर 0 होगी तो आपकी स्टेट क्या आ रही है? नो चेंज स्टेट। यस सर अगर t की वैल्यू 1 हो रही है तो j और k की वैल्यू क्या हो रही है? 1 1 1 1 से क्या कंडीशन आ रही है? टॉगल 1। यस सर मींस qn1 वैल्यू से भी qn बाहर आ जाएगी, so that is the toggle 1. So that is the truth table of your t flip flop with only having the two condition in that. देखो क्लियर है सबको बच्चे? टी फ्लिप फ्लॉप Yes, sir. क्लियर एवरीवन अप टू दिस पॉइंट? क्लियर एवरीवन? क्लियर सर Clear, sir. नेक्स्ट करते हैं बच्चे अब, हाउ टू रिमूव द कंडीशन विद द हेल्प ऑफ योर मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। मींस अब हमारी जो रेस राउंड कंडीशन है बाय यूजिंग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप से कैसे रिमूव करते हैं। आई हैव मेड द डायग्राम फॉर दैट, शायद इसमें बनी ना हो पीपीटी में, पीपीटी को दिखा देता हूं आपको। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपको। So now second condition is now how to remove the race around condition during the master slave JK flip flop. I have drawn the diagram for the master slave.
So this is a master slave JK flip flop. With the help of here, one is now master, second one is now the slave. Master slave JK flip flop. Now see this. Up listen. I am audible to all of you. Hello everyone. Yes, sir. ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली है तो आपका ये जेके फ्लिप फ्लॉप ही है, ठीक है। मींस एक जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे है और एक मास्टर उसका स्लेव पार्ट यहाँ पे है। बट डिफरेंस क्या आ गया है, जो पहले मास्टर में था उसमें इनेबल हमने पॉजिटिव कर दिया तो उसका नेगेटिव बाय यूजिंग इन्वर्टर हमने दूसरे स्लेव को दे दिया। देखो यही दिख रहा है सबको, पहले सर्किट डायग्राम देख लो। एनीवन हैविंग द डाउट अप टू दिस वन, सेम टू मास्टर स्लेव यूजिंग दिस वन, लास्ट आउटपुट फीडबैक इज गोइंग टू द प्रीवियस स्टार्टिंग इनपुट। डिफरेंस क्या है ओनली कि मैंने पहली इनेबल दूसरी की नेगेटिव इनेबल दी है। क्लियर? चेक आउट दिस डायग्राम। दिस इज आउटपुट इज नाउ Q1 bar, this is Q2 and Q2 bar। देखो बच्चे यहां तक क्लियर है सबको, डायग्राम पता लग रहा है बच्चे? देन आई हैव डूइंग द वर्किंग ऑपरेशन फॉर दैट। अब देखो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, सेम वही ट्रुथ टेबल बनेगा अकॉर्डिंग टू योर जेके फ्लिप फ्लॉप, वही टॉगलिंग कंडीशन आएगी। बट यहाँ पे लिमिटेशंस क्या रिमूव हो जाएगी बेसिकली। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके केस में अगर स्लो आ रहा है, मान लो आपका जो वेव फॉर्म है हमने इनेबल दे दिया, मान लो क्लॉक 1, ये क्लॉक साइकिल दिया हमने, दिस इज योर मास्टर, दिस इज योर स्लेव। मान लो मैंने क्लॉक साइकिल दिया मास्टर, यहां पे पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव के केस में मेरा ये सर्किट चलेगा और पॉजिटिव के केस में ये सर्कल नहीं रहेगा। ड्यूरिंग द ड्यू पॉजिटिव देगा तो इन्वर्टर के अकॉर्डिंग इसको नेगेटिव चले जाएगा, तो ये सर्किट वर्क में नहीं रहेगा। यही होगा बच्चे। अकॉर्डिंग टू दिस वेव फॉर्म आई हैव टू पुट अप द इनेबल सिग्नल, दैट इज द क्लॉक सिग्नल। That I am giving the high pulse to the input at this end. Same at the same time, negative input is going to this circuit, that is the slave part. तो पॉजिटिव में मेरा मास्टर एक्टिव रहेगा और नेगेटिव में मेरा स्लेव एक्टिव रहेगा। यस सर। देखो ये रहा एक बार। यस सर। ठीक है, मास्टर एक्टिव रहा और स्लेव एक्टिव रहा। चेक आउट माय दिस पॉइंट। मैं यहाँ पे केस डिस्कस कर रहा हूं, अवॉइड द कंडीशन ऑफ योर मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, जो रेस अराउंड कंडीशन को मैंने रिमूव करना है। इस डायग्राम को मैं रिमूव कर रहा हूं। प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज अ डायग्राम मेकिंग द यूज ऑफ योर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मैं अभी यहाँ पे फोर्थ केस डिस्कस कर रहा हूं, हाउ टू रिमूव योर रेस अराउंड कंडीशन एट दिस कंडीशन। नो, when clock equal to this one, j is equal to 1 and k equal to 1, when clock 1, जब clock की वैल्यू 1 है, हाई है, in that case master is now active, slave is now inactive। ये बात बच्चे क्लियर है? पहले देखो। यस सर। So therefore output of the master will toggle, so means output of master will toggle, output of the master will toggle,
so S and R also be inverted, mean S जो R जो मैंने दूसरा स्लेव बनाया था उसकी इनपुट थी S और R, so is that means S and R are also inverted। पहले देखो ये मैंने जो केस लिखा है ये डिस्कस हो गया सबको। मैंने जो प्रीवियसली डायग्राम बनाई थी, मास्टर की जो आउटपुट आई थी दैट इज Q एंड Q बार, उसकी जो इनपुट मैंने नेक्स्ट स्लेव को दी थी वो थी S और R की, जो मैंने गेट के आगे इनपुट कराई थी, ठीक है। मींस जब मेरी क्लॉक की वैल्यू 1 होगी तो मास्टर एक्टिव रहेगा ड्यू टू द इनेबल सिग्नल हाई, वही इनेबल सिग्नल को मेरी नेगेटिव वैल्यू दूसरे स्लेव को जानी थी, वो स्लेव इनएक्टिव हो जाना था बिकॉज इनेबल सिग्नल इज नाउ 0। इनेबल सिग्नल 0 से क्या होता, आउटपुट ऑफ द मास्टर विल द टॉगल, पहले मास्टर की वैल्यू टॉगल होनी थी, उस टॉगल की वजह से मेरी एसआर की वैल्यू भी इन्वर्टेड हो जानी थी, जो वैल्यू मेरी प्रीवियस वाली थी, यही होना था टॉगल से। क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यस सर। So now Yes. second one case when clock is 0, अब क्या है, हाई के बाद मेरी क्लॉक जानी थी 0, 0 से क्या होना था, मास्टर इज नाउ इनएक्टिव एंड स्लेव इज एक्टिव। ये एक्टिव, स्लेव इज नाउ एक्टिव। एक्टिव, यही कंडीशन होनी थी मेरी वहां पे। सर अब स्लेव टॉगल करेगा। अब इसमें क्या होना था बेसिकली, द आउटपुट ऑफ द स्लेव विल टॉगल। यस सर। सर ये टॉगलिंग तो अभी भी हो रही है। देखो जब मान लो मेरा अब क्लॉक साइकिल 0 चला गया, यस सर। मास्टर पहले वाला सर्किट इनएक्टिव हो गया, स्लेव एक्टिव हो गया, स्लेव एक्टिव हो गया तो जेके की वैल्यू तो मेरी 1 ही है। यस सर। तो उस केस में क्या हुआ, आउटपुट ऑफ द स्लेव विल टॉगल, उस केस में मेरा टॉगल सर्किट जो होगा वो स्लेव वाला चलेगा ना, स्लेव पे टॉगलिंग होगी, मींस जो आउटपुट जो हमारी Q2 बार पे आ रही है वो वैल्यू टॉगल होगी। यस सर। आउटपुट टॉगल होगी, मींस दिस चेंज आउटपुट आर रिटर्न बैक टू द मास्टर इनपुट, मींस जहां पे मान लो ये जो मेरी आउटपुट आनी थी स्लेव की, ये Q2 एंड Q बार सबसे लास्ट वाली आउटपुट थी ना, यस सर। यहाँ पे ये दोबारा फीडबैक होके फिर इनपुट पे जा रही है। यस सर। दैट इज द सेकंड केस जब स्लेव एक्टिव हुआ, मैं स्लेव एक्टिव की बात कर रहा हूं, तो इन दैट केस these changed output are returned back to the master input, master input पे वही इनपुट चलेगी चेंज होके। यस सर। टॉगल हुई वैल्यू, टॉगल वैल्यू होके जेके पे दोबारा चली गई। सो सिंस मींस जब क्लॉक की वैल्यू 0 हुई, मास्टर इज नाउ स्टिल इनएक्टिव रहा, सो इट डज नॉट रिस्पोंड टू दिस चेंज आउटपुट। ओके, to avoid this multiple toggling will leads to race around condition, means जब आपकी वैल्यू दोबारा टॉगल क्लॉक की वैल्यू 0 रही तो वैल्यू तो उसकी स्लेव की क्या रही आपकी, बात समझ लगी बच्चे? यहां तक देखो, पहले ये दोनों केस समझो कि एक केस में मास्टर एक्टिव रहेगा, दूसरे केस में स्लेव इनएक्टिव रहेगा। So these change output are returned back to the master input. यस सर। Yes, sir. क्लियर सर। देख लो एक बार सर्किट को बच्चे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया कि मेरे पास जब भी J और K की वैल्यू इनेबल हाई सिग्नल होगा तो मुझे यहाँ पे रेस राउंड कंडीशन नहीं मिलेगी। बिकॉज ऑफ दिस वन, फर्स्ट कंडीशन इज नाउ
एज ट्रिगर हम स्पाइक यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मेरी इतनी टॉगलिंग नहीं होगी। दूसरी रेस अराउंड कंडीशन यूज करेंगे मींस जब मेरा ये स्लेव बैक पार्ट रहेगा तो वैल्यू टॉगल हो गई, वैल्यू टॉगल होगी मींस लास्ट पे वैल्यू चेंज हो गई। चेंज वैल्यू जब दोबारा मेरे इनपुट पे जाएगी जीरो पे, जीरो के केस पे, तो मेरा मास्टर केस तो बंद पड़ा है तो वो तो उसके वैल्यू टॉगल करेगा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू चेंज नहीं होगी टॉगलिंग वन। So that is the second condition to avoid the race around the condition of your master slave JK flip flop. Now to Yes, clear sir. up to this point, बच्चे, Yes, sir. so this is now the complete basics topics of your flip flop, starting with the first with memory cell latch. Second one is I have discussing the modified SR latch with enable signal SR flip flop, D flip flop, JK flip flop, T flip flop, master slave JK flip flop, with the help of the timing diagram of the race condition and the race around condition, with your level triggered and the edge triggered. So that is the complete topic of your flip flop. All of you having the clear up to this point. Yes, sir. Yes, Now sir. I give the poll, next poll to you. The poll का आंसर दो मेरे को बच्चे. हो गया बच्चे, 10 students are pending right now. Give the poll. हो गया बच्चे. Okay, I have to end this poll. Only 5 or 6 students are pending. Urgently, quick now. Give your answer. Okay. Option is A now. So give the another poll.
यार की क्या वा Now, okay, students, that is option C. Give the answer to the another poll. ਸਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਸੀ If 15 students are pending, give your answer right now.
Okay, बच्चे. Option is now A. Combination circuit are more faster because there is no memory existence in that. Clear, everyone? Hello. यस सर. Okay. सर Yes, इसका sir. बट पता ही नहीं था कैसे करना है. क्या? सर ये पढ़ा ही नहीं था ऐसे फास्टर को होना है इनमें से. ये फास्टर अपने आप से अपने ढंग से लॉजिक लगाना है, पढ़ना क्या है इसमें? सर लैचेस फास्ट होता है, फ्लिप फ्लॉप स्लो होते हैं. बट सबसे फास्ट कॉम्बिनेशनल होता है. लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में फास्ट लो का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज द फंक्शनैलिटी फंक्शन दोनों का सेम है. कुछ मैंने आपको बताया कि कुछ काम करते हैं दैट इज अ फंक्शनैलिटी कैटेगराइज कि हम वो उस एप्लीकेशन को यूज किस ढंग से कर रहे हैं, कि उसको लिमिटेशन से यूज कर रहे हैं कि कैसे यूज कर रहे हैं. क्लियर? कि हमने पहले ये डिस्कशन किया है कि जो फ्लिप फ्लॉप वगैरह यूज करते हैं वो हमने स्पाइक्स पे यूज करते हैं, एज ट्रिगर पे, वो लेवल ट्रिगर पे यूज करते हैं. दैट इज अ लैचेस फ्लिप फ्लॉप में इतना नहीं है. ठीक है, सुनाओ. यहां तक देखो बच्चे, फ्लिप फ्लॉप तक क्लियर है. आगे हम करें कन्वर्जन ऑफ योर फ्लिप फ्लॉप. एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डिस्कशन करते हैं हम. The topic is now conversion of flip flops. Okay, now start with the conversion of the flip flop. सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक टॉपिक आता है, that is the excitation table. अभी हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रुथ टेबल पढ़ा था, that should be known as your truth table. To fulfill the condition of the conversion of the flip flop, you have to understand the excitation table. Excitation table वो होता है जहां पे हमारी करंट सिचुएशन के आगे नेक्स्ट सिचुएशन भी हमें पता हो. सो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कशन करता हूं. ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप का हम एक्साइटेशन टेबल डिस्कस करते हैं. तब उसके जाके आगे हम उसकी कन्वर्जन को पता लगेगा कि कैसे कन्वर्जन करनी है. तो सबसे पहले करते हैं प्रेजेंट स्टेट ऑफ क्यू आउटपुट, नेक्स्ट स्टेट ऑफ क्यू आउटपुट, then SN input, R input. So that is the table of the excitation table, present state of Q output and the next state of Q output with S input and R input. Okay, so इसके बिहार पे मैं एक कॉम्बिनेशन यूज करता हूं कि हमारे पास आउटपुट अवेलेबल है प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेज की बाय यूजिंग ऑफ द टू कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1. यहां तक बच्चे देखो क्लियर है. मैंने कुछ टेबल बनाया है, दैट इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ योर फ्लिप फ्लॉप. टू अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ योर फ्लिप फ्लॉप, उस एक्साइटेशन में मेरे कुछ ऐसे टेबल होते हैं, दैट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ क्यू आउटपुट, नेक्स्ट स्टेट ऑफ क्यू, प्रेजेंट स्टेट आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट क्यू आउटपुट. उसके बिहाफ पे मेरी एस और आर की इनपुट क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है. यहां पे अब चीज यहां से ध्यान से समझना. आई हैव ड्रॉ द, अगर मान लो Q की जो हमारी आउटपुट है Q वो 0 है और जो हमारी नेक्स्ट आउटपुट है वो भी 0 है, तो उस केस में मेरे एसआर फ्लिप फ्लॉप में कौन सी कंडीशन है? उस केस में मेरी S की वैल्यू क्या होती है बताओ? कि मींस मेरी Q की वैल्यू 0 है. लास्ट मेरी मान लो जो Q और Q बार हम डिस्कशन करते हैं वो वैल्यू मेरी 0 है. नेक्स्ट स्टेज पे भी, प्रीवियस स्टेज, प्रेजेंट स्टेज और नेक्स्ट स्टेज पे भी 0 है. उस केस में मेरी S और R की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैं ये बात कर रहा हूं आपसे. सर 0 S की वैल्यू क्या होती है? मींस मेरी
नेक्स्ट स्टेज प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेज 0 0 है, दैट मींस देयर इज नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ द आउटपुट। यस सर, एस और आर भी 0 0 होंगे। मींस उस केस में मेरा एस भी 0 होता है और आर भी 0 होता है, दैट केस इज नाउ नो चेंज कंडीशन। यस सर, सो मींस एस की वैल्यू भी 0 और आर आर की वैल्यू भी 0 0। आएगी। बट यस सर, यहाँ पे एक सिनेरियो डिफरेंट आ गया। मान लो ये सिनेरियो वो भी हो सकता है कि अगर मेरी Q की वैल्यू 0 है, इट मे बी हैपन अंडर द कैटेगरी ऑफ योर रीसेट कंडीशन। रीसेट कंडीशन। यस सर, मींस एक कंडीशन ये भी हो सकती है, मींस रीसेट कंडीशन पे मेरी S और R की वैल्यू क्या होती है, S की 0 और R की वैल्यू क्या होती है 1। मींस मेरी अब ये कंडीशन पे S और R की दोनों वैल्यू मेरी 0 और 1 भी हो सकती है, मींस यहाँ पे वैल्यू 1 भी हो सकती है, मींस इट शुड बी नोन एज योर डोंट केयर टर्म। यस सर, ये पता लगा यहाँ तक, हाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S एंड R बाय मेकिंग प्रेजेंट स्टेट एंड द नेक्स्ट स्टेट ऑफ Q। पता लगा बच्चे Yes, सबको? यस सर, नाउ नेक्स्ट स्टेट मान लो, नेक्स्ट इनपुट है आपकी आउटपुट 0 और 1, मींस पहले वैल्यू 0 थी फिर वैल्यू 1 होगी। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ S एंड R? सर 0 and 1। मींस S की वैल्यू पहले 0 थी फिर वो वैल्यू 1 पे आ गया, 1 पे आ गया मींस वो एक कंडीशन रीसेट कंडीशन हो गई, सेट कंडीशन हो गई। पहले 0 थी फिर 1 आ गई, 0 थी फिर वैल्यू क्या आई 1। अगर Q की वैल्यू 1 आ गई है, दैट इज द कंडीशन ऑफ योर सेट कंडीशन। सेट कंडीशन में मेरी Yes, S sir. और R की वैल्यू क्या होती है 1 और 0। देखो पता लगा बच्चे यहां तक। थर्ड कंडीशन, 1 के बाद वैल्यू 0 हो गई, मीन इट शुड बी नाउ रीसेट कंडीशन ऑफ योर S और R। थर्ड वन, दोनों की वैल्यू 1 मींस दैट इज द कंडीशन ऑफ योर नो चेंज, बट Q की वैल्यू 1 है, दैट इट इज योर रीसेट कंडीशन, दैट इज मीन योर डोंट केयर प्रीवियस वन ऑफ द कंडीशन। देखो ये ट्रुथ टेबल क्लियर हुआ, दैट इज एक्साइटेशन टेबल ऑफ योर SR फ्लिप फ्लॉप। Everyone clear the excitation table of your SR flip flop? Yes, sir. यस सर, ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं JK का। यहां पे वैल्यू ऑफ J और K कर देते हैं। J एंड नाउ बताओ, अब 0 0 है, J और K की वैल्यू क्या होगी? 0 0 situation in JK is similar with your SR condition, no Yes, sir, change 0 0 condition होगी। or your reset condition, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी। देखो बात पता लगी यहां तक बच्चे? यस सर, नाउ सेकंड कंडीशन, पहले वैल्यू 0 थी फिर Q की वैल्यू 1 हो गई, सो ये कौन सी कंडीशन है? सेट कंडीशन। सेट Set कंडीशन में J की वैल्यू 1 होती है 1 और Q की 0 वैल्यू K की 0। वैल्यू 0 होती है। बट ये एक और कंडीशन भी तो है कि किसी कंडीशन में ये वैल्यू टॉगल भी हो रही है, 0 थी फिर वैल्यू 1 हो गई, तो टॉगल कंडीशन में J और K की वैल्यू क्या होती है 1। J ऑलरेडी 1 था, K 1 होना था, मींस यहां पे भी मेरा क्या आएगा डोंट केयर।
तो बच्चे यहां तक पता लगा। Similarly, I have made the table cross 1, cross 0. तो ये दोनों कंडीशन जो मेरी आई है, दोनों रिजल्ट ड्यू टू द टॉगल कंडीशन, that is the excitation table of your JK flip flop. देख लो बच्चे, क्लियर है? किसी को यहाँ पे डाउट हाउ टू मेक, यहाँ पे हम आउटपुट से इनपुट फाइंड आउट कर रहे हैं। प्लीज गो टू क्लैरिटी विद अप टू दिस एंड बच्चे, एनीवन हैविंग द डाउट? No, sir. चले आगे बच्चे। नेक्स्ट इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ योर डी फ्लिप फ्लॉप एंड द टी फ्लिप फ्लॉप। डी पे क्या आएगा? डी पे इनपुट सिंगल 1 ही थी। डी पे वैल्यू आएगी डिजाइन होके हमारी 0 1 0 1। यस सर। अगर आप सिमिलरली टी की बात करोगे तो मान लो यहाँ पे इनपुट पे तो इसके आउटपुट आएगी 0 1 1 0। That is the T output for the excitation table of your D and T. बच्चे क्लियर है? देखो एक्साइटेशन टेबल, I have draw the 4 excitation table regarding with the 4 flip flop in which there have to present your present output and the next output. You have to do the make the input of the JK flip flop, sorry, T flip flop, D flip flop and your SR flip flop. So in go to PPT I have to go with the some flip flop conversion, some next lecture में करेंगे। ब्रीफली देख लेते हैं कि कन्वर्जन में होता क्या है। Now basically conversion is now SR to D, SR to JK in your PPT, SR to T, JK to T, ये सभी फ्लिप फ्लॉप से आपस में कन्वर्जन हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वन। ओके, तो ये कन्वर्जन कर रहे हैं, इसके कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं हाउ टू डू द कन्वर्जन। प्रोसीजर फॉर द कन्वर्जन, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, draw the block diagram of the target flip flop from the given problem, write the truth table for the target flip flop जो हमने बनाना है, the excitation table for the available flip flop, means target का truth table और available का excitation table, then draw the K map for the target flip flop, then draw the block diagram. So that is a some 5-point procedure for conversion of the one flip flop to the another flip flop. तो ये सेम टेबल के कुछ कन्वर्जन मैंने यहाँ पे उनका एक्साइटेशन टेबल या जो मैंने बोर्ड में बताया है, उससे पहले आप कुछ पोल कर लेते हैं बच्चे। ये पोल सॉल्व करो।
खा रहे कुलचा अमनदीप सिंह ने आप जरूर दूर जाके ये सिद्ध कर देता है कि वही असली मुजरिम है। जाके बोर्ड पर बच्चे हो गया है। 10 students are pending right now. Give your answer. I have ended this poll. That the option is 2. Answer is 2. Option A. Give the last poll for the today.
If you answer 15 shorts are pending. बच्चे आंसर करो जल्दी फिर. Option is now A. Okay. Now, students, I have discussion just right now the excitation table of the different all the types of your flip flop. That means we have discussion the SR flip flop, T flip flop, D flip flop, and the SR flip flop, JK flip flop. So इसकी जो हम conversion करेंगे, it should be done with the next lecture because conversion is some lengthy one. So it should have the clarity of the some basics concept regarding with the उस conversion को solve करने के लिए हमें जो हमारी requirement है that is now for the excitation table of your all this flip flop what I have done in your board and the previously truth table of your flip flops. Okay, so now some small topic, what are the different application of your flip flops. हमारी flip flop की applications क्या है. The first one is now it should be used as your counter and timer. Counter और timer को बनाने के लिए it should be working as your flip flop. Then it is used for the type of the resistors. Resistor means purpose. Resistor purpose is basic to store the number of bit at a time. So number of resistor I have discussion after the flip flop topic. That is a resistor fully topic. It may be the number of resistor, shift right resistor, shift left resistor. That is some other types, parallel in serial out resistor. There are 4 to 5 types of resistor we are discussing. That is the some application of your flip flop. Means first application is now counter and the timer. Second one is now used for the flip flop. Third one is now it is used as a delay element. It is used as a delay element. The fourth one is now it is used as an memory element because it is used for the storing purpose. That is used as a memory element. Means memory में जहां भी आप storage करते हो उसके अंदर bits को store करने के लिए flip flop use किए जाते हैं basically. And the fifth one is now elimination of the keyboard debounce. So that is the basically fourth ही आप application समझो जो basically हम storing purpose के लिए use करते हैं. That is now counter and the timer purpose. Counter, timer, shift resistors, and the delay element and the memory element for the use of your flip flop. So that are the topics of the flip flop. You have to face any query regarding with that. I have give you 4 to 5 minutes with discussion topics. कि किसी को भी कोई किसी टॉपिक में डिस्कशन है तो हम क्लियर कर लेते हैं इन रिगार्डिंग विद ऑल फ्लिप फ्लॉप्स, कन्वर्जन एक्साइटेशन टेबल्स एंड द वेवफॉर्म ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स. Ask to query to anyone having the face any difficulty. नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे. कन्वर्जन 2-3 कन्वर्जन कर लेंगे फिर आगे रजिस्टर्स कवर करेंगे. ओके किसी को प्रॉब्लम असाइनमेंट सबने सबमिट करवा दी है? Yes, sir. Now ask anyone having the question. सबको समझ लग गया बच्चे? राहुल टंडन, राधिका मित्तल, are you present right now? Yes, sir. Yes, sir. सुन रहे हो? सब समझ लग गया? राहुल टंडन, Yes, sir. Good morning. Yes, sir. परदीप कौर, नवनीत कौर, हेलो. Yes, sir. पल्लवी शर्मा, पल्लवी कुमारी, पारसपुरी. Yes, sir. क्लियर है बच्चे फ्लिप फ्लॉप्स? एनी डाउट अप टू दिस एंड?
नो सर। नो सर। सेशनल सबका अच्छा हो गया है, मार्क्स मैंने टिक कर लिए, मार्क्स सब चेक कर दिया है। बेसिकली आप सबकी ना एक प्रॉब्लम थी सेशनल में, मैं बता दूं वैसे आपको, जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो, एक क्वेश्चन था उसमें, दैट इज यू हैव टू ड्रॉ द ऑल द बेसिक गेट फ्रॉम द नैंड और नॉर। उसमें सबने बेसिक गेट नॉट एंड और बनाए हैं, एक्सॉर बहुत से कम बच्चों ने बनाया, एक्सॉर बनाया ही नहीं है किसी ने मोस्टली। सो बेसिक गेट जब भी बनाने को आए, यू हैव टू मेड ऑल दिस बेसिक 4 गेट, एंड और नॉट और एक्सॉर गेट। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके सर। यस सर। तो आप सबको पता लग गया होगा कि Yes, sir. एक्सॉर मैक्सिमम 99% बच्चों ने ये एक्सॉर गेट, जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, वो एक्सॉर गेट नहीं बनाया था। तो स्टाइल ऑफ द पेपर इन टर्म ऑफ योर ऑब्जेक्टिव, ऐसे ही पेपर आएगा, सभी न्यूमेरिकल बेस आएगा, लॉजिक आएगा सारा। अगर इन टर्म ऑफ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आएगा, दैट इज द डिफरेंट। ओके, तो आज का जो आपका इवनिंग का लेक्चर था, तो हमने अर्ली ले लिया है। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीक को भी मैंने लेक्चर आपका ऐसे ही किसी और दिन एडजस्ट करना है आपको, मैं पहले एक आधा दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताओ बताओ बच्चे। सर बट बेसिक गेट्स तो और एंड और नॉट गेट ही होते हैं। एक्सॉर इज आल्सो इन, एक्सॉर गेट इज आल्सो इन डन योर बेसिक गेट। बेसिक गेट तो वो सारे ही हैं बच्चे, केवल बेसिक गेट में यूनिवर्सल गेट अलग है, केवल नैंड और नॉर। अगर आप बेसिक गेट की बात करो तो वो एक्सनॉर गेट भी आपका बेसिक गेट में ही आता है। क्लियर? मींस यूनिवर्सल गेट तो नैंड और नॉर है। मेरी बात समझ रहे हो सर? बट बुक में तो एंड और नॉट ही यू गिवन हैव टू होता है। मस्ट ड्राइव योर आल्सो एक्सॉर गेट आउट। एक्सॉर गेट भी सभी लॉजिक्स के बीच में बेसिक गेट्स में यूज होता है आपका। क्लियर? यस सर। मस्ट ड्रॉ योर बेसिक गेट इन दैट। सर बट जब हमने बुक में देखा था तो सर जब से पढ़ रहे हो ना सर, गूगल पर भी यही शो होता है कि बेसिक गेट्स 3 ही होते हैं, और नॉट और आप जब भी ये ड्रॉ में आए बेसिक गेट, तो यू मस्ट ड्रॉ योर एक्सॉर गेट आल्सो। एक्सॉर गेट साथ में बनाऊंगा, ठीक है? बट ये श्योर रहे कि जैसे भी मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ, नॉट रीड जस्ट लाइक योर थ्योरी 1 पेपर। ये थ्योरी का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। जो भी हमने एक्साइटेशन टेबल कुछ भी पढ़ रहे हैं, देखो ये एक एक स्टेप एक दूसरे से लिंक्ड ही है। आगे आगे हम ऐसे ही बढ़ेंगे। जो हमने रजिस्टर पढ़ने हैं वो इस फ्लिप फ्लॉप के बेस पे पढ़ने हैं, काउंटर करेंगे, उसकी टाइमिंग डायग्राम करेंगे, वो इस फ्लिप फ्लॉप पे ही है। Please go to understand the truth tables of your flip flop and the excitation table of your flip flop. Yes sir. So that is a very logical understanding. इससे बाद हमने रजिस्टर का करना है, काउंटर करना है। That is a very logical topic. बहुत लॉजिकल है उसमें। Yes sir. ठीक है? और बताओ, any query regarding with that? Anyone having the doubt? Any query with the DCLD subject? Clear sir. ये ना समझ लगती है कि नहीं? सर लगती है। क्लियर क्लियर कहते रहते हो। सर फास्ट बहुत होता है, थोड़ा बहुत समझ लग जाता है, बीच में से स्किप हो जाता है। नहीं, फास्ट कैसे होता, मतलब ऑडियो वीडियो सुनाई नहीं देती है क्या? क्या सर बीच में से नहीं समझ आता कई तो बार। पूछो क्यों नहीं समझ आता था? हम तो तभी तो मैं आपसे रिस्पॉन्स लेता हूँ, क्योंकि इसके अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वैसे समझो। आई हैव टू ब्रेक टू एलैबोरेट वन ना। आप अगर आप बोलोगे तो किसी और को भी, 2 जनों को समझ लगेगा। किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो ओके सर। मुझे पता ही नहीं लगेगा, मैं तो आगे ही चलूंगा ना। मैंने पूछ लिया, किसी 2 ने मेरे को रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है। किसी को नहीं रिस्पॉन्स था तो वो बता देगी, सर इस डाउट पे ये पॉइंट 2 मिनट बता दो, तो वो तो डिस्कशन करेंगे ना बच्चे। ओके सर। My motive is not now to complete your syllabus. The first thing understand to you. My motive is now to understand each and every concept firstly to you. Okay? So not don't understand up to this point कि मैं जो आपको syllabus खत्म करवा रहा हूँ, not go to this point. This is a logical one. जितना हमें लगेगा वो हमें समझ लगना चाहिए बच्चे। That is a very logic. आगे जितने भी competition एग्जाम आप जहां भी करोगे, ये DCLD subject is most logically cover question in each and every paper. सर नेक्स्ट वीक कोई डाउट सेशन मतलब कंडक्ट कर सकते हो, डाउट क्लास? बच्चे लेक्चर में ही है, बच्चे लेक्चर में हम आधा घंटा डिस्कशन कर लेते हैं। किसी को कोई भी डाउट है उसमें क्या प्रॉब्लम हमें? ओके सर। इसको मैं तो हर लेक्चर में पूछ रहा हूँ। अभी भी मैंने आपको ये 15 मिनट्स इसलिए दी है कि हम डाउट्स और डिस्कशन करें, क्योंकि आपको लेट ही रहता। अभी मैंने अभी कन्वर्जन करवाई नहीं है आपको।
Yes, sir. तभी तो मैं ये सेशन ले रहा हूँ कि लास्ट 15 मिनट्स वी हैव टू डिस्कशन विद ईच अदर कि आपको कोई डाउट हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको डाउट हो ही ना हो। दैट इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। मैंने भी अपनी बीटेक में पढ़ा हुआ है। हम भी जब समझते थे तो टीचर के पढ़ाने के बाद भी हमें ये सब्जेक्ट अच्छी तरह समझ नहीं लगता था, बिकॉज़ दैट इज अ Yes, लॉजिक sir. वन। दैट इज अ फर्स्ट टाइम फॉर यू। आपके लिए तो फर्स्ट टाइम है ना बच्चे। You Yes, have to sir. feeling doubt at your end. If you do and not understand in my lecture, you have not understand in your book also. That clarity from my end. आपको समझ नहीं लग पाएगा अच्छी तरह से अगर आप मेरा लेक्चर नहीं सुनोगे। Yes, sir. Clear? I have to make the each and every session last 15 minutes for that. I have make half an hour for that. You have to make query for that, and I have to clarity with them. बहुत से logics हैं. You have to respond to me in my lecture. Then I have to discussion with them. Okay, so my motive is now to clarity to each and every question. मुझे नहीं पता लगेगा, then I go to forward. मैं तो आगे करवाऊंगा ही बच्चे. I am not to stop at this end. Okay. Thanks a lot Yes. बच्चे. Now I will meet you next week. Next week मेरा मैंने Friday lecture आपका मैंने ये पूछा था कि Thursday को lecture किसका होता है, मैं ये बताओ जो नए टाइम Sir, टेबल के data मुताबिक। structure. Data सर डाटा structures. स्ट्रक्चर्स का होता है डेटा स्ट्रक्चर वो कौन पढ़ाता है? विनोद सर। Vinod sir. कितने बजे लेक्चर होता है? सुबह होता है, कब होता है? सर सुबह होता है Today 9:30। 9:30 बजे ना 9:30 to 11:30. थर्सडे को। तो नेक्स्ट वीक भी मुझे सब अर्जेंट वर्क है फ्राइडे, तो मैं आपको फ्राइडे लेक्चर नहीं लूंगा आपका, किसी और डे किसी भी 4 डेज में आपका कन्वर्ट करवाऊंगा। एक दिन पहले आपको बता दूंगा पहले, ठीक है? यस Okay सर। sir. Okay, thanks Lord बच्चे, thank you very much. So please understand the each and every topic, then I have to discussion with the next lecture. Okay? यस सर। Okay, Okay thanks sir. Lord. Thank you sir.